हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। साल 2020 ने तो कमाल ही कर दिया। इस साल ये कोरोना वायरस, कहने को तो ये वायरस है, पर इसने ड्रैगन की तरह भागती हुई दुनिया को एक सडन ब्रेक लगा दी है। सारी मैनकाइंड अपनी जान बचाने के लिए अपने अपने घरों में दुबकी पड़ी है। बड़े से बड़ा देश, स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री, रिसर्च सेंटर्स, टेक्नोलॉजिकली एडवांस लॉजिस्टिक्स, सब इसके सामने फेल हो गए। ट्रंप, मोदी कोशिश करने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहे। अगर कुछ थोड़ा बहुत खुश है तो चाइना ही है, या फिर शायद चाइना अपने दुख को लोगों के सामने बता नहीं रहा है। इस कोरोना वायरस के अलावा प्राकृतिक आपदाएं भी लगातार 2020 में आ रही हैं। जैसे दिल्ली एनसीआर में 14-15 तो अर्थक्वेक ही आ गए हैं। ऐसे 14-15 एस्ट्रॉयड्स अर्थ के आसपास से निकल रहे हैं, जो कि बहुत क्लोज सेविंग है। इसके अलावा कलकत्ता में अम्फा साइक्लोन, बॉम्बे में अभी रिसेंट साइक्लोन, लोकस्ट अटैक, बॉम्बे में गैस लीक एंड टेंशन एट इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ पाक एंड इंडिया, नेपाल एंड चाइना। और इन सब के बीच अब ये नई कहानी ऑफ रेसिज्म, जिसके कारण यूएस में और यूके में क्या स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट हुए हैं। ये रेसिज्म क्या चीज़ है, इसी के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं कि ये कलर ऑफ ब्लैक एंड वाइट, व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट। क्या जो फेयर है वही ब्यूटीफुल है, और जो कुछ प्रोडक्ट्स के ऐड हैं टू बिकम फेयर, क्या वे सही हैं? क्या ब्लैक वस्तुएं ख़राब हैं, टू बी लुक डाउन है? क्या जो मैट्रिमोनियल एड्स की फेयर ब्राइड इज़ वांटेड, उनका क्या औचित्य है? हमारे देश में काले और गोरे को कैसे देखा जाता है, ये सब विचारणीय विषय है। देखिए दोस्तों, ब्लैक और वाइट दो कलर्स, इनफैक्ट कलर्स ही नहीं है। वाइट कलर अपने ऊपर सारी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जबकि ब्लैक कलर सारी लाइट को एब्जॉर्ब करता है। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। प्राइमरी कलर तो तीन ही कलर हैं, RBG, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। वी लव टू हैव ब्लैक हेयर्स, ब्लैक आइज। ब्लैक कैट्स आर कंसिडर्ड auspicious in UK. We have black Shani Graha. We have black commandos, which are considered to be possessing power. We have black color dress of judges and lawyers, again denoting power. We have black belt, which is the most powerful position gained in judo karate, whereas white colored belt is only for beginners. To the contrary, the white color is a color of peace. Doctors have white color dress. Bride is dressed in white color in Christian community. The Pope wear white apron, but we do also have white mourning dress. In England, to the contrary, the black is the color which is used for the funeral purposes. In UK, we have black buffaloes, white cows, both give a good quality milk. Women wear black burqa in Muslim community. We also consider blonde hairs to be of good texture in Western community. We have Black Fridays, which are considered to be a symbol of drop in production on Fridays, because Thursday is the last working day in French at one point of time. दोस्तों, जो खबर में आया था, जो न्यूज़ थी regarding US riots and protests, these protests have been triggered because of unruly act of the white policeman in US, who caught hold of a person who happened to be a black man on a suspicion that he is in possession of a $20 currency note
which was a fake one. While the black man was apprehended with the fear that he may not escape, he was overpowered, and in that process, the white policeman put a pressure of his knee onto the neck of the black man and continued it for prolonged 9-10 minutes, as a result of which, because of suffocation and obstruction of windpipe, that he ultimately collapsed and died. The name of the black man was Floyd Roger. Although the policeman was subsequently charged with an offense of murder, also that he lost his job, but as a consequence of his act, the violent protests erupted in US. Those protests followed then in UK also. ये बात तो माननी ही पड़ेगी कि ये प्रोटेस्ट केवल एक या दो इंसिडेंट के कारण नहीं है, ये ज़रूर एक कॉन्टीन्यूस भेदभाव और ऑपरेशन का मामला है जो वहाँ पे ब्लैक मैन फेस करते होंगे, जिसके कारण फाइनली, क्योंकि अब ब्लैक भी पावर में आ गए हैं और उनकी भी कुछ से है, द यूएस वर अर्लियर हैविंग ए ब्लैक president, so therefore these protests could take place, and they are in fact justified also to some extent. देखिए, स्किन के ब्लैक या वाइट कलर का होना से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु अगर उसके कारण कुछ डिस्क्रिमिनेशन है, कुछ प्रेजुडिस है, then it is called racism, that white people consider themselves to be superior over the black people. आपको याद होगा यही सब कुछ महात्मा गांधी जी ने भी सफ़र किया था जब वो साउथ अफ्रीका गए थे. महात्मा गांधी was a lawyer who was born in India and he studied in UK. जब उन्होंने वहाँ बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री ले ली तो वह वापस इंडिया आए. तब उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली अपने इंडियन क्लाइंट के लिए साउथ अफ्रीका जाने के लिए 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे. दिस हैपेंड इन द ईयर 1893. When Gandhiji was there, he was thrown out of a railway compartment from the first class because he was an Indian and not a white man. गांधी जी ने तब डिसाइड किया कि वो साउथ अफ्रीका में ही रहेंगे, हालांकि उनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका था. गांधी जी ने तब एक कैंपेन लॉन्च किया साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के खिलाफ, जहां इंडियन लोगों को राइट टू वोट नहीं था. उन्होंने नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी, which had drawn international attention. उसके बाद उन्होंने वहाँ सत्याग्रह किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और तब 7 सालों के बाद उन्होंने साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन किया. He then came back to India in the year 1914 and thereafter led independence movement. On the similar lines, नेल्सन मंडेला ने भी अपार्थाइड मूवमेंट शुरू की थी. यह मूवमेंट भी साउथ अफ्रीका में ही हुई थी अगेंस्ट द रेशियल सेग्रीगेशन बिटवीन वाइट एंड ब्लैक पीपल. साउथ अफ्रीका वाज बीइंग रूल्ड बाय माइनॉरिटी ऑफ वाइट पीपल, और वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे अगेंस्ट द ब्लैक ऑन द बेसिस ऑफ द स्किन कलर एंड देयर फेशियल फीचर्स. देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ इक्वल पे टू द ब्लैक पीपल. नेल्सन मंडेला को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया था because of the movement created by him, saying that his activities are anti-national. नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे, और तब under political and world pressure he was released from jail and to end the apartheid by the then de Klerk government. Nelson was then greeted as a hero on his release from the jail, and he won election and became the first black president of South Africa. इस सिचुएशन को अगर लीगल कंसेप्ट में देखें तो द मैरिज और एनी रिलेशनशिप बिटवीन वाइट एंड ब्लैक पीपल वर नॉट लीगल and were considered as immoral also. Subsequently, in the year 1967, that by a Supreme Court ruling in the case Loving versus Virginia, that the Supreme Court of South Africa declared such marriages as legal marriages. Now internationally, this racism is considered as a crime against humanity. India में भी there is Article 14 of Constitution of India which says equality
बिफोर लॉ ऑफ एनी इंडिविजुअल। यानी कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो सिटीज़न हो चाहे नॉन सिटीज़न फॉरेनर हो, कानून सभी के लिए बराबर होगा। देयर इज़ देन आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच सेज दैट द स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, सेक्स एट्सेट्रा। और पब्लिक यूटिलिटी वाली जगहों पे जैसे वेल हुए, मॉल्स हुए, थिएटर हुए, वहाँ पर भी नो पर्सन वुड बी सब्जेक्टेड टू डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए अलाउ किए हैं अंडर द प्रोविजन विच सेज दैट सम प्रोटेक्टिव measures can be adopted for women and of minority section. There was also an international convention on the elimination of racial discrimination which was held in the year 1969, जिसमें there are 88 signatories। पर दोस्तों इन सब मेजर्स के बावजूद भी हमें ये बात तो माननी पड़ेगी कि हमारे देश में भी रेसिज्म इन द फॉर्म ऑफ कास्ट प्रिवेल करती ही थी। चाहे कहने को हम सारे ह्यूमन बींग्स एक होमोसेपियंस से बिलोंग करते हैं, पर फिर भी फ्रॉम रीजन टू रीजन ऑल ह्यूमंस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जिस प्रकार देयर एग्जिस्ट डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स लाइक एल्सेशियन डॉग, लेब्राडॉग, एंड वी हैव इंडियन डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स, more milk producing cows, powerful and healthy horses, livestock, etc. In the same manner, a person living in one region may have a different capability and capacity from that of the person living in another region. For that matter, हर 40-50 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज में फ़र्क आ जाता है, कुछ उनके बिहेवियर में फ़र्क आ जाता है, so difference do remain. And every human being is not equal in terms of his capacity and capabilities. ये बात डिफरेंट है कि हमें सब ह्यूमंस को इक्वल ट्रीट करना चाहिए, बट इवन देन वी हैव एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स, सो वन इज़ ऑलवेज एट a recipient end, and the other one is a giver in terms of knowledge, wisdom, strength, resources, his economy and power. वैसे तो इंडियन लॉ में ये भी कहा गया है कि देयर कैन नॉट बी इक्वालिटी अमंग्स अनइक्वल्स। अगर हम वर्ल्ड को, प्लेनेट अर्थ को एक ही माने तो हमें अलग अलग देश की बाउंड्रीज भी बनाने की ज़रूरत नहीं थी। वी शुड हैव सेम करेंसी इन द वर्ल्ड। ऐसा क्यों है कि डॉलर और यूरो तो महंगा है और नेपाल की करेंसी या बांग्लादेश की करेंसी या श्रीलंका की करेंसी बहुत वीक है? अगर ऐसा सब कुछ रहेगा तो ये लाजमी है कि पर्सन लिविंग इन इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विल कंसिडर इटसेल्फ टू बी सुपीरियर देन द कंट्री हैविंग लोअर इकोनॉमिक वैल्यूज़। सो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ब्लैक कलर से कोई प्रेजुडिस है। ब्लैक तो इंडिया में तो ब्लैक कलर्ड हमारे गॉड्स हैं ही। कृष्ण भगवान हैं, वह तो खुद ही ये पूछते हैं कि राधा क्यों गोरी और मैं क्यों काला। वी हैव काली माता, वी हैव शनि गॉड, वी हैव शिवा हु इज़ डार्क ब्लू इन कलर। सो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू मी द ट्रू इक्वालिटी इज़ येट टू बी अचीव्ड in the world, and we have a long way to come to that concept when every individual will be treated as equal to the other one, irrespective of his economic power, irrespective of his knowledge, and irrespective of his resources. But as of now, we have to strike some balance so that world may function smoothly and in solidarity. So this is all for today. These were some personal views which came to my mind, and I thought that I must share these facts with you. Thank you very much for listening me with a great patience. Do give me your feedback and comments. I will request you to subscribe my channel and share my videos. Thank you again. Namaskar.